Hello, ma'am. Cannot hear you. Ma'am, are you saying something? We cannot hear your voice. Hello, ma'am, your voice is not audible. Am I audible now? Can you hear me? Yes, ma'am. You can Yes, hear? ma'am. Yes, Okay, ma'am, okay, now. okay. Let me explain again. Fracture. What is fracture? Fracture का मतलब सबको पता है. If there is a break or crack in a bones, हमारा जो bones है इसमें अगर break और crack हुआ तो उसको बोलते हैं fracture. Now again ये उसका definition है. Again after that you can find the types of fracture. और fracture का types होता है, उसमें closed fracture होता है और open fracture होता है. और ये closed fracture जो है, ये what is this closed fracture? Where the skin over the fracture is not broken. Skin over the fracture जो है that is not broken. इसलिए उसको close कहला जाता है. And then again open fracture. Open means खुला. Totally open. Open fracture is where the skin over the fracture is broken. And I will show you the diagram. Diagram यहाँ पे तुम लोगों को difference पता चलेगा. ये close fracture है यहाँ पे और ये open fracture है. This is the difference between closed fracture and open fracture. Next, what to do for a closed fracture? Closed fracture के लिए क्या करना चाहिए? First of all, we have to advise the casualty to keep still, and then we have to support the joint above and below the injury with your hands until it is immobilized with a sling or bandage in the position in which it is found. इसका मतलब है कि that particular joint, you have to support that joint above as well as below the injury with your hands. With your hands, you need to support the joint above as well as below the injury until it is immobilized. Immobilized means not moving. Or usko bend, you have to bandage as well as you have to put a sling in order to immobilize it. And then again, you have to place padding around the injury for extra support. Paddling भी रख सकते हैं for extra support. And then again, you can also call 911 for any emergency help for leg injury. If अगर किसी का leg injury हुआ, तो you can just call 911 for emergency help. And then you can also take that casualty, means that particular patient, to the hospital. And then also you can also like for limb fracture, those who have limb fracture, for upper limb fracture, immobilize the arm with a sling. वो sling तो सबको पता है, वो sling. With that sling, what you will do is that you will immobilize the arm. If your upper limb is fractured, suppose if your upper limb is fractured, you have to immobilize the arm with a sling. अगर lower limb fracture हुआ, then you have to move the injured leg to the injured one, to the uninjured leg. Means अगर upper limb fracture हुआ ना, upper limb fracture हुआ तो you have to immobilize the arm with a sling. लेकिन अगर हमारा जो lower limb है वो अगर fracture हुआ तो we have to move the uninjured leg to the injured one and secure with broad fold bandage. That broad fold bandage, that bandage is known as broad fold bandage. That is what you need to do for a closed fracture. अगर किसी का ये closed fracture हुआ तो क्या क्या करना चाहिए? These are the technique. I hope you already got the notes. These are the technique that you need to apply. Next, what to do for an open fracture? अगर किसी का open fracture हुआ तो क्या करना चाहिए? What to do?
फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन फ्रैक्चर फिर से दिखाती हूँ, ये ओपन था, ऐसा किसी का फ्रैक्चर हुआ तो देखते ही क्या करना चाहिए। ओपन फ्रैक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर द वुंड विद स्टेराइल ड्रेसिंग, क्योंकि वहां पे तो वो इंजरी होगा। फॉर दैट रीजन दैट पर्टिकुलर वुंड यू नीड टू cover that wound. कैसे? sterile dressing का मतलब है कि clean sterile dressing means like totally gloves लेके अच्छी तरह like you aseptic technique follow करना है। cover the wound with a sterile dressing or large clean gauze pad, gauze और clean gauze ये सब लेके वो उनको clean करना है। and then you have to apply pressure around the injury to control bleeding. ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि here you find that there is bleeding occur as the bone is totally break. That's the reason why bleeding occur. So अगर bleeding को बंद करना है तो जिस जगह में इंजरी है उसका ऊपर pressure apply करना है. You have to apply the pressure and be careful not to press on a protruding bone. जहाँ पे वो बोन का जो फ्रैक्चर है उसमें ज्यादा प्रेस नहीं करना है। यू नीड टू प्रेस क्यों? पहले तो यू नीड टू प्रेस, लेकिन ज्यादा भी प्रेस नहीं करना है। प्रेस का मीन्स द रीजन व्हाई यू प्रेस इज दैट यू हैव टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। एंड देन द नेक्स्ट इज केयरफुली प्लेस a sterile wound dressing or more clean padding over and around the dressing. Means like फ्रैक्चर हुआ, जहाँ पे फ्रैक्चर या उस जगह में जब ड्रेसिंग करेंगे you need to apply this sterile technique. Means aseptic technique. And then secure the, who is making noise? Secure the dressing and paddling with a bandage. These are the things you need to do for this open fracture. Next is stable and unstable fracture. अभी देखते हैं स्टेबल फ्रैक्चर क्या है और अनस्टेबल फ्रैक्चर है। I already explained this, later on I will ask you. मैंने already explain कर लिया क्लोज फ्रैक्चर क्या है और ये पिक्चर भी दिखाया कैसा होता है, ओपन भी दिखाया। Now I will show you कि स्टेबल फ्रैक्चर, what is stable fracture, what is unstable fracture. Now let us discuss what is stable fracture. Stable fracture occur when the broken bone and do not move because they are not completely broken or they are impacted. I will show you the diagram. Stable fracture का मतलब है कि जब bone break होता है, means the end of the bone जब break होता है, they don't move. जो break होता है, that particular bone which break, that don't move, that doesn't move because they are not completely broken. पूरी तरह means like completely वो bones break होता है लेकिन वो completely break नहीं होता है. That is the reason why the bone end do not move. They are impacted, means tight, they are impacted. Such injury are common at the wrists, हमारा ये wrists पे या shoulder पे या फिर ankle पे या फिर hip पे बहुत common है ये this injury. And then usually this fracture can be gently handled without further damage. And यहाँ पे स्टेबल फ्रैक्चर का मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ. दिस इज स्टेबल फ्रैक्चर, दिस इज द स्टेबल फ्रैक्चर ऑफ हील बोन का एग्जांपल लेके. स्टेबल फ्रैक्चर ऐसा होता है, बोन ब्रेक होता है लेकिन ये पार्ट जो ब्रेक होता है ये मूव नहीं होता. ये दिस पर्टिकुलर ये जो ब्रेक पार्ट है मूव नहीं होता है. मूव क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो बोन ब्रेक हुआ दैट completely ब्रेक नहीं हुआ उसका, इसलिए उसको कहला जाता है स्टेबल फ्रैक्चर. समझ में आया? व्हाट इज स्टेबल फ्रैक्चर? बोन ब्रेक होता है लेकिन completely ब्रेक नहीं होता है. दैट इज द रीजन व्हाई द बोन डजंट मूव, ये मूव नहीं होता है. इसलिए ये लाइन में बोला है स्टेबल फ्रैक्चर का मतलब है व्हेन द ब्रोकन बोन्स एंड डू नॉट मूव बोला. ये जो ब्रोकन हुआ है लेकिन मूव नहीं होगा बोला. क्यों मूव क्यों नहीं हो? ब्रेक तो हुआ है लेकिन मूव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन.
क्योंकि कॉम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए जो बोन ब्रेक हुआ वो मूव नहीं होगा, उसका मतलब है स्टेबल फ्रैक्चर। और ये ऐसा टाइप का जो फ्रैक्चर है ये कहाँ कहाँ पे कॉमन है? हमारा शोल्डर पे, हमारा रिस्ट पे, हमारा एंकल पे और हमारा हिप पे ये स्टेबल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। एंड देन अभी वी ऑलरेडी नो स्टेबल फ्रैक्चर क्या है, अभी पढ़ते हैं अनस्टेबल फ्रैक्चर क्या है। अनस्टेबल फ्रैक्चर का मतलब है कि द ब्रोकन बोन एंड कैन इजीली मूव। यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है। स्टेबल फ्रैक्चर में हमने क्या देखा कि बोन ब्रेक होता है लेकिन मूव नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ब्रोकन बोन एंड है ये मूव होता है बोला। तो आई विल शो यू द पिक्चर कि ये अनस्टेबल फ्रैक्चर कैसा होता है। देयर इज अ रिस्क दैट दे मे डैमेज ब्लड वेसल। और हमारा ये अनस्टेबल फ्रैक्चर ये जो है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हमारा जो ब्लड वेसल है और हमारा जो नर्व है और ऑर्गन अराउंड द इंजरी, जिस जगह में इंजरी है उस साइड का जो ऑर्गन्स, हमारा जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, that they get means like what to say, they are a great risk of injury. They are a great risk of injury. Now unstable injury can occur if the bone is broken or the ligaments. उसका ये दोनों का डिफरेंस तो तुम लोगों को पता चल गया ना, अनस्टेबल फ्रैक्चर क्या है और अनस्टेबल फ्रैक्चर क्या है। अभी जो अनस्टेबल है मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये अनस्टेबल है, ये इसको बोलते हैं अनस्टेबल फ्रैक्चर। यहाँ पे बोन ब्रेक होता है और ये जो बोन ब्रेक हुआ है दैट विल मूव, वो दिस विल मूव। और यहाँ पे स्टेबल में क्या है, ब्रेक होगा लेकिन जो ब्रेक हुआ है मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटली ब्रेक नहीं हुआ। और इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे भी ब्रेक फ्रैक्चर का ब्रेक, बोन्स ब्रेक होता है लेकिन ये जो ब्रेक है ना ये सब मूव होगा। क्यों मूव होगा? ये तो कंप्लीटली ब्रेक है, पूरा ब्रेक है, इसीलिए ये मूव होता है। ये स्टेबल और अनस्टेबल का डिफरेंस है। एंड नाउ नेक्स्ट, फिर से देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रैक्चर टाइप्स इंक्लूडिंग, बहुत सारा फ्रैक्चर का टाइप्स होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एवल्शन फ्रैक्चर, आई विल शो यू द पिक्चर लेटर ऑन। एवल्शन फ्रैक्चर क्या है? एवल्शन फ्रैक्चर मसल और एवल्शन फ्रैक्चर क्या है? एवल्शन फ्रैक्चर का ये है, इसका जो साइड का ये जो ब्रेन बोन है ये दैट विल ब्रेक, ये एवल्स, ये है एवल्शन। ऐसा ब्रेक होने से, एंड पार्ट में ऐसा ब्रेक होने से उसको बोलते हैं एवल्शन फ्रैक्चर। That is avulsion, a muscle or ligament pull on the bone, fracturing it. Next is comminuted fracture. ये सब फ्रैक्चर का नाम यू हैव टू बाय हार्ट, सब लोग को बाय हार्ट करना है। ये फ्रैक्चर का जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर होने से फ्रैक्चर का क्या क्या टाइप्स होता है, नाम क्या है और इसका पिक्चर कैसा होता है, ऑल दिस यू नीड टू नो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। comminuted fracture, here the bone is shattered into many pieces. यहाँ पे comminuted में क्या होता है कि ये यहाँ पे देखिए, ये जो बोन्स है comminuted में बहुत पीसेस से ब्रेक हुआ, ऐसा बहुत पीस से ऐसे ब्रेक हुआ, उसको बोलते हैं comminuted fracture. The comminuted fracture, the bone is shattered into many pieces. ब्रेक होता है, पीस में ऐसा ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं comminuted fracture. Next, compression fracture generally occur in the spongy bone in the spine. For example, the front portion of the vertebra in the spine may collapse due to osteoporosis. और यहाँ पे ये जो कंप्रेशन है, ये जो कंप्रेशन का, यहाँ पे कंप्रेशन का पिक्चर नहीं है, लेकिन कंप्रेशन का मतलब है कि here generally occur in the, ये जो फ्रैक्चर है ना ये हमारा मेनली स्पाइन पे, ये स्पॉन्जी बोन इन द स्पाइन, जो हमारा स्पाइन पे वहां पे मेनली होता है ये जो फ्रैक्चर। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रैक्चर डिसलोकेशन, a joint become dislocated and one of the bone of the joint has a fracture. Fracture dislocation का मतलब है कि हमारा जो joint है ना वो dislocate हो जाता है,
उसका डिसलोकेट का मतलब अपना लोकेशन में, अपना जगह पे और नहीं होते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा मीन्स लाइक इट यूज्ड टू बी, कैसा बोलो मैं, डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेट मीन्स अपना जगह पे नहीं रहते, उसको बोलते हैं a joint become dislocated and one of the bone of the joint has a fracture, और डिसलोकेट होके अपना जगह में ना होके और एक इन वन पर्टिकुलर बोन पे फ्रैक्चर होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन। फ्रैक्चर भी होता है साथ साथ में उसका जगह पे भी नहीं होते, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन। नेक्स्ट, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? द बोनी पार्टली फ्रैक्चर ऑन वन साइड ऑफ द ग्रीन स्टिक यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रीन स्टिक, ये है ग्रीन स्टिक, ये बोन है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक होता है, a bone stick, where is the one? Yeah, green stick. The bone partly fracture on one side but does not break completely because the rest of the bone can break. उसका मतलब है कि green stick fracture का मतलब बहुत easy है। यहाँ पे क्या होता है, ये bone है, यहाँ पे थोड़ा break दिखाई देता है, ये जो break है ये पूरा break नहीं होते, ये you can see here सिर्फ थोड़ा सा break है, थोड़ा सा ब्रेक और पूरा ब्रेक नहीं होता है, और इस थोड़ा सा ब्रेक का वजह से हमारा जो ये बोन है बैंड हो सकते हैं, बैंड, और उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक bone is break but only small amount, small part of the bone is break, वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। यहाँ पे द बोन partially means थोड़ा सा, the bone partially fracture on one side but does not break completely, and then next is hairline fracture। hairline fracture भी है a partial fracture of the bone, थोड़ा सा जो हमारा जो bones fracture होता है उसको बोलते हैं hairline fracture। sometimes this type of fracture is harder to detect with routine x-ray। जब x-ray करते हैं ना, ये जो partial fracture है ना, हमारा body का जो bone है ना, जो वहाँ पे थोड़ा सा fracture होने से उसको hairline fracture बोलती है, और ये जब एक्सरे करते हैं हॉस्पिटल पे तब इट इज हार्डर टू डिटेक्ट, मींस उसको डिटेक्ट करने में, एक्सरे में भी डिटेक्ट करने में बहुत हार्ड होता है। और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है? व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर वन फ्रैगमेंट ऑफ बोन गोज इनटू अनदर। यहाँ पे ये वाला ये जो क्या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, ये वाला ये वन साइड वन पार्ट ये यहाँ पे ब्रेक होता है, वन फ्रैगमेंट ऑफ बोन गोज इनटू अनदर। एंड नेक्स्ट इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर में क्या है कि व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर, व्हेन द ब्रेक एक्सटेंड इनटू द सरफेस ऑफ ए जॉइंट, माने जो ब्रेक है सरफेस ऑफ द जॉइंट तक वो है एक्सटेंड होने से उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। मींस व्हेन द ब्रेक एक्सटेंड, बोन तो ब्रेक हो रहा है बट इट आल्सो एक्सटेंड इनटू द सरफेस ऑफ द जॉइंट। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर है इसका मतलब है द ब्रेक इज along the length of the bone। ये हमारा बोन का जो लेंथ है ना, उस मींस लाइक the break is along the length of the bone। मींस मैं क्या कैसे बोलो कि जो ब्रेक हुआ है it is along the length of the bone, लेंथ की तरफ, लेंथ ब्रेथ हाइट इन द लेंथ पार्ट। Next is oblique fracture। Oblique fracture is very common, a fracture that is diagonal to a bone long axis। It is diagonal to a bone long axis, and here you can see this picture. Yeah, this is the oblique one, this oblique fracture। a fracture is ये जो diagonal, ये जो बोला है ना, मैथ्स में भी diagonal मिला ना, वो ऐसा diagonal की तरह ये जो oblique है, ये ऐसा straight करके ब्रेक नहीं होता। ट्रांसफर में देखिए यहाँ पे पूरा ऐसा सीधा in the middle it used to break like this, but oblique ये जो है यहाँ से लेके सीधा ऐसा ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं oblique फ्रैक्चर डायगोनली ब्रेक होता है। Okay, then after that
that is known as oblique fracture. That is, a fracture is diagonal to a bone long axis. Next is pathological fracture. Pathological fracture क्या है? When an underlying disease or condition has already weakened the bone resulting in a fracture. यहाँ पे क्या है कि हमारा जो underlying disease or condition has already weakened, अगर किसी का कुछ डिजीज है उस डिजीज का वजह से ऑलरेडी बोन में फ्रैक्चर हो गया तो उसको बोलते हैं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. व्हेन एन अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन हैज ऑलरेडी वीकेंड द बोन रिजल्टिंग इन अ फ्रैक्चर, तो उसका मतलब है कि किसी का ऑलरेडी कुछ डिजीज है, उस डिजीज का वजह से और उस प्रॉब्लम का वजह से उसका बोन्स ऑलरेडी वीक है और वो डिजीज का वजह से बोन वीक हुआ, उसका वजह से बोन वीक होने का वजह से फ्रैक्चर हुआ, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर. स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? A fracture where at least one part of the bone has been twisted. स्पाइरल में ये क्या होता है, थोड़ा बोन ट्विस्ट हो जाता है. यहाँ पे ये है, दिस इज स्पाइरल. This is spiral, and then again that is spiral, and then again there is stress fracture. More common among athletes, a bone break because of repeated stress and strains. बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये सब का वजह से बोन अगर ब्रेक हुआ तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर. और टोरास फ्रैक्चर का मतलब है बोन्स डिफॉर्म बट डज नॉट क्रैक. यहाँ पे टोरास में क्या होगा, हमारा जो बोन्स है ना उसमें डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम, ऐसा डिफॉर्मिटी होगा लेकिन बट इट डज नॉट क्रैक, लेकिन क्रैक नहीं होगा. और ये बच्चा में, ये चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है एंड ये बहुत पेनफुल होता है ये दिस टोरास फ्रैक्चर. बोन डिफॉर्म होता है लेकिन ब्रेक नहीं होता. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ए स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस ए बोन. यहाँ पे तुम लोगों को पता चलेगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऑब्लिक फ्रैक्चर में इसमें भी फ्रैक्चर होता है लेकिन डायगोनली फ्रैक्चर होता है. लेकिन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें भी फ्रैक्चर होता है लेकिन स्ट्रेट ब्रेक होता है. जो ब्रेक है यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा, इसमें भी देखिए मिडिल में, इसमें भी सीधा स्ट्रेट ब्रेक हुआ, ट्रांसवर्स में सीधा स्ट्रेट फ्रैक्चर हुआ, इसमें ऑब्लिक में डायगोनल फ्रैक्चर हुआ. तो ऐसा और ऐसा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर. एंड नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स. अभी हमने बहुत सारा वो फ्रैक्चर का टाइप्स, फ्रैक्चर क्या है ये सब कुछ और उसका डायग्राम भी दिखाया, सब कुछ पढ़ लिया. अभी किसी का फ्रैक्चर हुआ तो अभी उसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा. तो ऑब्वियसली अगर किसी कोई बाइक एक्सीडेंट हुआ और कोई गिर गया तो उन लोगों का अगर फ्रैक्चर हुआ तो ऑब्वियसली किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको बहुत पेन होगा, तो स्वेलिंग होगा, ब्रूइशिंग होगा और फिर डिस्कलर स्किन अराउंड द अफेक्टेड एरिया. जिस जगह में वो फ्रैक्चर हुआ उस जगह का जो स्किन का जो कलर है वो चेंज होगा. तो उस एंड देन एंगुलेशन मींस द अफेक्टेड एरिया मे बी बेंड एट एन अनयूजुअल एंगल. यहाँ पे जिस जगह में जो फ्रैक्चर हुआ ना, इफेक्ट हुआ, उस जगह में थोड़ा सा वो बेंडिंग होगा. And then the patient is unable to put weight on the injured area. अगर if you have a fracture in your hand, अगर किसी का हाथ में फ्रैक्चर है तो वो हैवी चीज कैरी नहीं कर पाएंगे. अगर किसी का लेग में अगर फ्रैक्चर हुआ तो अच्छी तरह चल नहीं पाएगा. तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ तो you can see in a person. Then the patient cannot move the affected area. उसका मतलब है कि जिस साइड में जैसे कि हैंड फ्रैक्चर हुआ तो जिस जगह में फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट वी कैन मूव, उसको बोलते हैं कि द पेशेंट कैन नॉट मूव द अफेक्टेड एरिया. नेक्स्ट, the affected bone or joint may have a grunting sensation. ये grunting sensation भी होता है. If it is an open fracture, there might be bleeding. मैंने बोला था ना पहले कि जो open fracture यहाँ पे लास्ट में लिखा कि अगर किसी का open fracture हुआ तो there may be bleeding बोला. तो अगर open fracture होने से तो bleeding होता है.
ये बोला है। और आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल की ब्लीडिंग होने से उसको कैसा ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप किया जाता है, वी हैव टू पुट प्रेशर डाल के वी नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले उसका डेफिनेशन सिखाया था कि फ्रैक्चर का मतलब है किसी का बोन्स में अगर ब्रेक और क्रैक हुआ तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। और उसका टाइप्स का सिखाया था, क्लोज एंड ओपन फ्रैक्चर। और क्लोज फ्रैक्चर भी पिक्चर भी दिखाया, ऐसा क्लोज फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर ऐसा होता है, उसका डेफिनेशन भी सिखाया। उसके बाद व्हाट टू डू फॉर क्लोज फ्रैक्चर होने से क्या क्या करना चाहिए, बैंडेजिंग करना चाहिए, स्लिंग लगाना चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने सब सिखाया। अगर इमरजेंसी केस हुआ तो 911 को कॉल करना है, पैडिंग चाहिए तो लगाना है, हॉस्पिटल में जाना है तो लेके जाना है। ऑल दिस इट्स वेरी इजी। अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ तो क्या क्या करना है, ओपन फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली वहां पे तो तुम लोगों को ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने से तो कैसा करना है, यू हैव टू फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, बहुत अच्छी तरह स्टेराइल करके, स्टेराइल ड्रेसिंग करके जिस जगह में फ्रैक्चर हुआ उस जगह अच्छी तरह क्लीन करना है। अच्छी तरह क्लीन नहीं करने से क्या होगा, उस जगह पे स्टेराइल ड्रेसिंग फॉलो नहीं करने से इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वी नीड टू डू स्टेराइल ड्रेसिंग। और फिर वो जो स्टेराइल उन ड्रेसिंग है ना, वो अच्छी तरह वो है ड्रेसिंग करना है, केयरफुली प्लेस बोला। यहाँ पे भी अगर पैडिंग चाहे तो लगाना है, और बैंडेजिंग चाहे तो बैंडेजिंग भी लगाना है। एंड देन नेक्स्ट, हाँ ये वाला भी सिखाया था। और फिर क्या सिखाया था, स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर। और ये वाला भी सिखाया। स्टेबल भी क्या था, पिक्चर भी दिखाया। यहाँ पे स्टेबल पे, यहाँ पे बोन तो ब्रेक होगा, लेकिन जो ब्रेक है वो मूव नहीं होगा। मूव क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बोन ब्रेक हुआ वो पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ, तो उसको स्टेबल फ्रैक्चर बोलते हैं। एंड देन ये अनस्टेबल भी सिखाया। बोन ब्रेक होता है, इसमें क्या होता है, पूरी तरह कॉम्प्लीटली ब्रेक होता है, इसलिए जो यहाँ पे छोटा छोटा जो ब्रेक है वो मूव होता है। एंड देन यहाँ पे मैं हर तरीका का क्या क्या टाइप्स होता है सब सिखाया। एवल्शन, कमिटेड, सब ये सब तुम लोग बाहर करके पढ़िए। ये सब अच्छी तरह ये नाम ये सब नेम सब कुछ बाहर करके ये सब पढ़ना। बाहर करके पिक्चर देख के समझ के ये सब पढ़ना। और ये सब भी सिखाया था। और ये ऑब्लिक ट्रांसफर, ये मेनली मैंने, ये तो हमारा नॉर्मल बोन है, जो नॉर्मली हम जो हमारा बोन है, इसमें मैंने दिखाया था ट्रांसफर क्या था। या ट्रांसफर तो पूरा ये जो हमारा सीधा सा जो बोन था, मिडिल में पूरा स्ट्रेट से ब्रेक होने से ट्रांसफर, यहाँ पे ऑब्लिक में डायगोनली होने से स्पाइरल भी ऐसा सिखाया था। कम्युनिटेड भी छोटा छोटा सा ऐसा ब्रेक होने से, ये सेगमेंटेड तो ये मिडिल में अलग अलग से ऐसा ब्रेक। एवल्स भी एंड पॉइंट में थोड़ा ब्रेक। इम्पैक्टेड भी यहाँ पे टोरस भी सिखाया था, थोड़ा यहाँ पे बेंड होता है। और फिर यहाँ पे ग्रीन स्टिक में भी मैंने क्या बोला था, ग्रीन स्टिक में बोला कि इन ग्रीन स्टिक में क्या है कि यहाँ पे बोन ब्रेक होता है, लेकिन थोड़ा सा बोन ब्रेक होता है, उसका वजह से वो बेंडिंग भी होता है। एंड देन लास्ट में मैंने सिखाया कि उसका साइन एंड सिम्टम्स, फ्रैक्चर होने से क्या क्या दिखा जाता, बैठना होगा, माने पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ब्रेशिंग होगा। जिस जगह में हमारा फ्रैक्चर हुआ है उस जगह का स्किन कलर भी चेंज होगा। और फिर और अगर तुम्हारा हाथ में इंजरी हुआ तो उस जगह में तुम हैवी चीज तुम उठा नहीं पाएगी। और फिर एंड देन the patient bone or joint may have a grinding sensation भी होगा। एंड अगर किसी का ओपन फ्रैक्चर हुआ तो वो ब्लीडिंग हो सकता है, इसीलिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, जिस जगह में ब्लीडिंग हुआ उस जगह में प्रेशर देना है। Did you understand? Did you understand my explanation? Yes, ma'am. Okay. You have any doubt? No, ma'am. Oh, you need to by heart very nicely like this, क्योंकि ये सब तो फ्रैक्चर वगैरह का थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है उसका टाइप्स क्या है नाम बाय हार्ट कीजिए। एंड देन यू जस्ट नीड टू सी द पिक्चर, उसका पिक्चर देख के तो ज्यादा समझ में आएगा।
Okay, now how many minutes left? Only सिर्फ 1 minute बाकी है. आज के लिए मैं इतना पढ़ाऊंगी. Tomorrow, tomorrow I can't say tomorrow. Okay. Okay. Thank you.